ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಬೇಕು, ಇದು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕ್ವಶನರ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು, ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಿತ್ತು. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ನ ಉತ್ತರ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯೋರು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕೋಡ್ A1002 ಆಗಿದೆ. ಆಗ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1002 ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಉಪಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನದಾಫ್, ಪಿಂಜಾರ, ನಾಲ್ಬಂದ್, ಕಸಾಬ್ ಅದು ಯಾವುದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಉಪಜಾತಿ ನಿಮ್ಮದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಇದೆ. ನೀವು ಅದು ಉರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 3ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 12ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೊಟ್ಟು ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆದಷ್ಟು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संतरपेट के चौथे वार्ड के हमारे जनाब नेमत साहब प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के और सोशल वर्कर भी हैं। एक अहम मुद्दा लेकर, एक अहम पैगाम लेकर आप सबकी खिदमत में आए हैं और मुझसे दरख्वास्त की कि इस बारे में कुछ बात करूं। तो सबसे पहले ये स्टिकर देखिए। ये स्टिकर कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तरफ से हर घर पर लगाया जा रहा है और मैंने खुद कई खवातीन को इस सिलसिले में बात करते हुए सुना कि पता नहीं क्या किया जा रहा है, क्यों स्टिकर लगाया जा रहा है। तो सबसे पहली वजाहत यह है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये स्टिकर हर घर पर बेस्कॉम की तरफ से लगा दिया जा रहा है। इसके बाद इसी महीने की 22 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक एक सेंसस होने वाला है, समाजी और माशी सेंसस उसको कहा जाता है। उसमें लोग ऑफिसर्स आपके घरों पर आएंगे, आपकी सारी तफसीलात लेंगे कि घर में कितने लोग हैं, कौन हैंडीकैप है, कौन मजबूर है, कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, सारी तफसीलात आपकी लेंगे। सारी तफसीलात आप सबको भी देना है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है कि जहां पर रिलीजियस का कॉलम होगा वहां पर सिर्फ इस्लाम लिखवाना है और कास्ट का जहां कॉलम होगा वहां पर मुस्लिम लिखाना है। इस्लाम और मुस्लिम के अलावा कोई और जात का नाम नहीं लेना है। मिसाल के तौर पर पठान है, शेख है, सैयद है और शरीफ है, फुला है, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखवाना है। और इसी तरीके पर जो मसलकी नाम होते हैं जैसे शिया सुन्नी है और बरेलवी देवबंदी है, अहले हदीस है, इस तरह से भी कुछ भी नहीं लिखाना चाहिए। सिर्फ रिलीजियस के नाम पर इस्लाम और कास्ट के नाम पर मुस्लिम लिखवाना चाहिए। इसलिए एहतियात जरूरी है कि
अगर हम दूसरे अलकाब भी लिखाते रहेंगे कि मुसलमान भी हैं, फलां भी हैं, फलां भी हैं, तो उस बेस पर आगे चलकर आने वाली हुकूमतें उस बेस पर मुसलमानों को टुकड़ों में तकसीम करके उनका रिजर्वेशन भी कम किया जा सकता है और उनका जो माइनॉरिटी फंड आता है वो भी कम किया जा सकता है और उसी को बहाना बनाकर नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए बहुत एहतियात के साथ सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम के अलावा कुछ भी अपना शेख, पठान, शरीफ और दूसरा कोई भी लक़ब हो या खानदानी नाम हो कुछ भी ना लिखाएं ताकि डिवाइडिंग से बचा जा सके। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा इस सेंसस के बाद, उस सेंसस की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के रिजर्वेशन में ज्यादती हो सकती है और इसी तरह मुसलमानों का जो माइनॉरिटी फंड आता है उसमें ज्यादती हो सकती है और गरीबों की बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें और ये स्टिकर को देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जो सेंसस होने वाला है उसमें सारे लोग, सारे टुनकुर वाले, सारे टुनकुर जिला वाले सब मिलकर उसमें अपना योगदान दें और पूरा क्या है उनके साथ ताउन करें और जो भी सवालात पूछे जाएं बराबर उसका जवाब दिया जाए। बस जो आखिरी बात कही गई वो ये है कि इस्लाम और मुसलमान के अलावा कोई जात वात ना लिखवाए। जी हाँ, ये जो स्टिकर आपको दिखाया जा रहा है बार बार, ये घरों पर लगाया जा रहा है, कोई इसको हरगिज ना उतारे, रिमूव ना करे और उसे फाड़ कर ना सटे। अपनी जगह जहां पर लगाया गया है उसे रहने दें और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक समाजी और इक्तिसादी सेंसस होने वाला है, उसको कामयाब तरीके पर अदा करने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात उलमा कर्नाटका की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको है। रात के 2 बजे ये वीडियो बनाने को हूं, जब मुझे एक रिपोर्ट आई उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। आज क्या बातचीत चले बताता हूं, तुम ना गौर से पूरा वीडियो सुनो। इसमें जमीर अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, पूरे उलमा मिल को बना को ही सोइए। अब तुम ना जब सेंसस के वास्ते आती उसमें आपको 60 सवाल ही, 60 क्वेश्चन ही, तो गौर से सुनो। इसमें से सबसे पहले रहता रिलीजन क्या। रिलीजन में तुम्हें आपको इस्लाम लिखो, कास्ट रहता है, कास्ट में आपको मुस्लिम लिखो, सब कास्ट रहता है, सब कास्ट में आपको कुरैशी, अंसारी, शेख, नहीं तो लिखो ना को, बेहतर है ब्लैंक छोड़ डालो। बचत के तुम्हारे बहुत से सवाल ही, 57 क्वेश्चंस रहती। तुम्हें काम क्या कर रही, तुम्हारे कमा रही कितना, घर में क्या है, अपाहिज ही, घर में कमाने वाले नहीं, मैं 20,000 कमा रहा हूं, जो भी है, भाड़े का घर में उधर था पहले, सही सही बताओ। बता को ये पूरा फिल करो, जिन्हों भी आती उनको बहुत अच्छी तरीके से बताओ, उनको बिठाओ घर में। 60 सवालों का जवाब देना है सो तो आराम से टाइम लो। और एक चीज दिमाग में रखो, जब उन्हों आती तो उन्हों आपको पूरा पेपर्स में लिखने का नहीं रहता, ये इन्हों आपको डायरेक्ट सिस्टम में फीड कर दी, टैब की ले लो को आती उसमें फीड कर दी। तुम्हें गौर से बैठो कोई नजदीक और चेक करो कि तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना। स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करो, जो बहुत जने गलतियां कर को ही वो गलती इस बार करने जाओ ना को। और एक चीज क्या बोले तो तुम्हारे पास 3 चीज रहना, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ये 3 में से कोई एक चीज रहे तो भी चलता है। रहेगी का तो तुम्हारा ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। भाड़े का घर रहा तो टेंशन नहीं, तुम्हारा हाउस लिस्टिंग में तुम्हारा कोई भी ये 3 आईडी आगे का तो तुम्हारा मोबाइल नंबर के साथ अटैच हो जाता है। तुम्हें घर छोड़ को दूसरी जगह गए तो भी तुम्हारा नंबर ऐड होकर रहता है, तो तुम्हारा फैसिलिटी जो भी आएंगी उसका फायदा मिलता है। और एक चीज का खास ख्याल रखो, दियोबंदी, बरेलवी, वहाबी, सल्फी, तबलीग की जमात, फिरका में, मसलक में स्प्लिट हो को कुछ भी लिखने जाओ ना को। इसमें डिवीजन होता है, हमारा जो कोटा होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी डालता हूं, और हो सके तो तुम्हें घर में रहो। उस टाइम पर सितंबर 22 से अक्टूबर 7 तक चलता है ये सर्वे। 1,70,000 जने को ये सर्वे कर ले को 420 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट होको है सिर्फ ये सेंसस के वास्ते। तो बहुत बड़ा काम जो चलने को है। 2011 में हुआ था, 2015 में इनकम्प्लीट हुआ, 2019 का भी आपको कोविड की वजह से प्रॉब्लम होगा। तो इसे पूरा करो। हमारी ताकत हमारी एकता है, और ये मैसेज सब जनांग को स्प्रेड करना जरूरी है। हर एक जनांग के साथ ये शेयर करो, अपने स्टोरीज में डालो। जब तक सर्वे नहीं होता ऐसे मैसेजेस को सर्कुलेट करते रहो।